The major FDI which was coming into India was towards the, since unsecured lending is increasing, do you see there is a concern for RBI? Is this India's decade? 2024 के अंदर आप देखोगे कंजम्पशन लोन और पर्सनल लोन का ओवरऑल 10 लाख करोड़ का वॉल्यूम होगा। हमारे जो भी मेट्स रहे हैं उनका कॉमन पेन पॉइंट है कि उनका लोन कभी खत्म नहीं हो रहा। A lot of Chinese app along with few Indian CAs have been under the radar of the government of India. Loan app, यानी कि जिंदगी तबाह। They borrowed quick loans to support their family. आज के टाइम में आम आदमी इतना डीपीआईज को यूज कर रहा है हर नोक एंड कॉर्नर पे। वी आर सराउंडेड बाय डीपीआईज एंड आई थिंक दैट इज द सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया। आप यकीन नहीं करेंगे, आरबीआई ने एक एनबीएफसी को केवल इसलिए बोला कि अपना ये लोन प्रोडक्ट बंद कर दो क्योंकि वो की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा था जनरली। क्या हम इनोवेशन के चक्कर में रेगुलेशन को ध्यान नहीं करते हैं या रेगुलेशन के चक्कर में इनोवेशन को इम्पैक्ट करते हैं? फिनटेक के साथ एक बड़ा इशू मुझे लगता है कि Hello everyone for the today's podcast in the Upskill School. Today we have the amazing guest Abhishek Varshney, the founder of India Financial Forum (IFF). And first of all, welcome Abhishek to the show. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। So quickly मैं अभिषेक के बारे में बताता हूँ. He has led the stellar career in the fintech world, financial world, in the housing finance world. He has worked with companies like PNB Housing, Clicks Capital, and also he's currently working with Sehmati as their partnership and strategic division. And the most important part is that he has been keen observer of how things are happening in the world of finance, fintech, BFSI, and how the ecosystem has to be supported from outside. So he has founded BFSI a professional community, which is India Financial Forum (IFF), which does a lot of initiative, which we're going to talk Abhishek today. And also, he is expert in lending space because he has dealt in the lending space in his roles. Currently, also working in Sehmati. So, welcome once again, and we would like to hear from you about IFF. How did you thought to start? What are the vision? What do you want to achieve? And tell us what changes which you are bringing in with your initiatives, Abhishek. तो थैंक यू अभिषेक फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक जब मैंने 10 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था, तो एक कॉमन लकीली आई गॉट नेशनल रोल विद वन ऑफ द लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड एक किसी भी कोई भी प्रोफेशनल है जो बीएफएसआई में अपना करियर बनाना चाहता है, I think he is looking out for right mentorship, right assistance, guidance towards products, especially in decision making roles जहाँ पे आपको products deal करना है तो आपको पता नहीं होता कि which is the right product which will suit you, what is the market precedence, market में क्या क्या चल रहा है अभी। तो ये common queries थे मेरे और I used to spend a lot of time in dwelling around with these issue। और when you are young in your career and ज़्यादा experience नहीं हुआ था आपको, तो reaching out to your manager becomes a बिग टास्क है। आप हर चीज के लिए उसको पूछ रहे हो तो समय और आपको लगता है कि कुछ चीजें आप खुद से कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ इंडस्ट्री प्रॉब्लम भी है, कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हेनेवर आई यूज्ड टू रीच आउट टू एनीबॉडी एल्स इन द मार्केट, मुझे लगता था कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सबको क्लियर फुल 360 डिग्री पता है। देयर ऑलवेज अ गैप, और वो गैप क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ एनर्जीज सिनर्जीज लोगों के साथ बात करके सॉल्व हो सकती है। We obviously conveniently use WhatsApp as a platform and started getting like-minded people, all majorly decision makers across all lending verticals. तो majorly IFF जब born हुआ था 6 साल पहले, तो it was heavily housing finance curated community, Correct. majorly all digital transformations, digital marketing या आपके जो भी digital projects manage करते हैं वो सारे लोग थे। The one thing which I think everybody clearly associated and started encouraging us about was कि धीरे धीरे हम लोग जब डिस्कस करने लगे अपने पेन पॉइंट्स, तो हाउसिंग फाइनेंस में द वन ऑफ द पेन पॉइंट वाज हाउ वी कैन मेक द जर्नी इंस्टेंट। और इंस्टेंट जर्नी के लिए हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़े दो बैरियर थे कि अब टेक्निकल और लीगल वाज अ बिग इशू। Correct. So we tried dwelling around industry problem of how we can together, if we can come together, how we can solve for at least skipping one of the technical valuations या valuation part को कैसे seamless बना सकते हैं। तो thought was people from housing finance company or the housing finance company can start sharing valuation and metadata around property together basis the geotag, you can actually solve that technical problem। तो although वो हम crack नहीं कर पाए,
बट एटलीस्ट एक कॉमन पेन पॉइंट की वजह से हम लोगों को इकट्ठा कर पाए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे टू ग्रो एंड सपोर्ट ईच अदर. नाउ दिस कम्युनिटी इज मोर देन लाइक 5,000 पीपल अक्रॉस ऑल BFSI वर्टिकल्स, नॉट जस्ट लेंडिंग. हाउसिंग फाइनेंस के अलावा सारे लेंडिंग एंड इंश्योरटेक इज अनदर वेरी एक्टिव ग्रुप ऑफ आवर्स. एंड ऑल्सो देयर आर अराउंड 17-18 डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ग्रुप्स जो स्पेसिफिक नीड्स से हम बनाते हैं, कि जो भी ट्रेंडिंग चल रहा होता है एंड वेयर देर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया, या हमको लगता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंडिंग की इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गो अबाउट द प्रोसेस. आई थिंक वी एज अ प्रोसेस वी काइंड ऑफ float a group, and we kind of dwell deeper into what is happening, how we can help, and how what is the precedence. तो और 6-7 साल पहले अगर आप देखोगे, इवेंचुअली डिजिटल लेंडिंग भी काफी इवॉल्व की है इसी टाइम में, बहुत बहुत। एक्सपोनेंशियली. टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी है, देर आर सो मच चेंजेस, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. तो फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर और पार्टनरशिप गाय, उसको पार्टनरशिप के रोल भी इवॉल्व हो गए इसी तरह, कि आप कैसे सिनर्जीज ला सकते हो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट इन द इकोसिस्टम. करेक्ट। देयर वर लॉट वाज हैपनिंग ऑन LSPs, और जो मार्केट प्लेस हैं वो लोग फिनटेक की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे क्या रूल्स हैं, कैसे RBI के जो रूल्स हैं उसको इंटरप्रेट करना है. तो यहाँ पे हम लोग वो गैप भरने की कोशिश कर रहे थे. तो दिस इज हाउ IFF स्टार्टेड. आवर एम इज टू इंश्योर रीच एवरी BFSI प्रोफेशनल अपार्ट फ्रॉम सेल्स, जो भी डिसीजन मेकिंग में है, so that it's not just the group of 5,000 people can get benefit out of these. It is about that we are enabling all the BFSI professionals who are entering into this space, or who are there in this space, and can leverage this platform for their own well-being. So this was all ethos and mission which we are driving at IFF. In fact, India may, after the recent government changes, I would say the overall startup encouragement for fintech बहुत ही बढ़ा है. एंड मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ समय में जब द मेजर FDI which was coming into India was towards the fintech business. Mm. And the way ecosystem have grown, जैसे ecosystem बड़ा हुआ है, जिस तरीके से नए नए products हैं, and the way the clarity which RBI gave, whether for the entire LSP DLA arrangement and the digital lending piece, whether the entire payments ecosystem for payment aggregator, payment gateway, whether the BBPOU complete clarity in terms of how and what is the role and responsibility of bank or AI. I think the vision is to bring more investment in the fintech world, and with more investment coming in the fintech world, more problems are getting solved. बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा क्रेडिट पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द लेंडिंग टेक जिनको बोल रहे हैं हम लोग. एंड लॉट ऑफ ई-कॉमर्स आर आल्सो प्लेइंग लेंडिंग टेक रोल along with banks, sponsor banks. My question is, since unsecured lending is increasing, do you see there is a concern for RBI if that is go in the direction of not having the right credit mechanism and not having the right gating criteria, and this could lead to, क्या ये NPAs को बलून अप कर सकता है फ्यूचर में? इसको हम ना दो तरीके से डिवाइड करते हैं. लेट्स थिंक ओवर आज क्या स्टेटस है. आज के टाइम ऐसा है कि आप अगर लोन लेना चाहते हो, जस्ट गिग वर्कर है कोई, फॉर एग्जांपल स्विगी का ड्राइवर है, वो लोन लेना चाहता है, ही कैन गेट दीज लोन इंस्टेंटली, राइट. अनसिक्योर्ड लेंडिंग में जो भी डेवलपमेंट हुआ, या जो भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन हुआ, इट लेड टू दिस फ्रेमवर्क कि आज के टाइम में आप कुछ मिनटों के अंदर लोन ले सकते हो, और आपको लोन लेने के लिए किसी ब्रांच को विजिट नहीं करना है. इट इज सो इंस्टेंट कि जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है वहीं पे आपको लोन मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल अर्बन क्लैप में आप जाओगे तो अर्बन क्लैप में जो भी उनके वेंडर्स ऑनबोर्डेड हैं, या जो भी वर्कर्स उनके साथ स्टार्ट, जो भी प्रोफेशनल उनके साथ एसोसिएटेड है, उनको किट के लिए पैसा चाहिए, तो अर्बन कैप हैज enabled a lending product for them backed by, वो फ्रंट एंड LSP हो जाता है, बैक एंड में देयर वुड बी सम न्यू एज लेंडर्स, न्यू एज NBFCs जो उसको असिस्ट कर रहे हैं. और मॉडल इतना क्यूरेटेड और अच्छा है कि इसके रिकोर्स भी कहीं ना कहीं कंट्रोल है, बिकॉज इवेंचुअली पैसा जो फ्लो होना है वो अर्बन क्लैप से आपको ब्लू कॉलर वर्कर के पास आना है. तो इट हैज अ काइंड ऑफ रिकोर्स. दीज आर वेरी क्यूरेटेड, वेरी लेस रिस्की मॉडल्स जो बनना है. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि और देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन इनोवेशंस कम इन. और ये अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि देयर वाज अ स्कोप, देयर वाज अ क्रेडिट गैप, ह्यूज क्रेडिट गैप, जो कि फिल अप करना चाहिए. 2024 के अंदर आप देखोगे कंजम्पशन लोन और पर्सनल लोन का ओवरऑल 10 लाख करोड़ का वॉल्यूम होगा जो किया, और देयर इज अ डबल डिजिट ग्रोथ इन अनसिक्योर्ड लोन बिकॉज देयर वाज अ गैप. उनको लोन नहीं मिल रहा था, पीवी पीपल वर लेफ्ट फॉर
लेंडर्स जो कि ये जो नॉट फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी में लेंडर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, दे गिफ्ट मे बी टू द लेवल ऑफ 3 digits लोन। आई रिमेम्बर, मैं जितनी बार भी हमारे जो भी मेट्स रहे हैं उनका कॉमन पेन पॉइंट है कि हम्म, उनका लोन कभी खत्म नहीं हो रहा, हाँ। ना उनके पास ट्रांसपेरेंसी है। वो हम्म, कहते हैं हम लोग पैसे देते रहते हैं लेकिन ये लोन चला ही जा रहा है। आप लिटरली एक करंट मेट इज आस्किंग मी कि आप 1 लाख रुपए दे दो, हाँ। मैं आपको ब्याज भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस पर छूटना है क्योंकि मेरी 2-3 साल हो गए मुझे लोग 1 लाख का लोन नहीं बंद कर पाए। लॉजिकली आई थिंक द वे इट हैज ग्रोन, ऑब्वियसली देयर आर कंसर्न्स, देयर आर रिस्क ऑफ ओवर लिवरेजिंग, हम्म, देयर आर रिस्क के आप ज्यादा पैसा दे देते हो तो मे बी द कस्टमर गेट्स इनटू अ डेट ट्रैप। correct. बट इट शुड नॉट बी सॉल्व बाय रिस्ट्रिक्टिंग दिस बिजनेस मॉडल, इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि आप लोगों को एजुकेट करो। पहली बात, इंडिया के अंदर आप देखो कि देर इज नो फाइनेंशियल एजुकेशन एट द कॉलेज लेवल और एट स्कूल लेवल। कोई नहीं Correct. सिखाता आपको फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम कि वो जब पैसा मिलेगा उनको तो उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, सही बात। राइट? सेकेंडली, आई थिंक स्ट्रॉन्ग रिस्क मॉडल शुड बी देयर जो आपको प्रिडिक्ट करके, मतलब अगर आप देखोगे बहुत सारे बेसिक, मतलब फिनटेक के साथ एक बड़ा इशू मुझे लगता है कि जो कि काफी हद तक आरबीआई ने रूल्स और गार्ड बना के सॉल्व किया है, बट हम्म, देयर वाज नो एंट्री बैरियर हम्म। फिनटेक्स के लिए। तो करेक्ट। स्मॉल गाय जिसके पास 20-30 लाख का पैसा भी है, हम्म, वो जाएगा और कोशिश करेगा कि मैं इसके अंदर कुछ मॉडल बना दूं। बेसिक मॉडल्स कैन स्टार्ट की, अगर किसी लेंडर ने 1 लाख रुपए दिया हुआ है, मैं उसको 10,000 का एक्स्ट्रा टॉपअप देता हूँ, तो हम्म, मैं ऐसे करके बिल्ड कर देता हूँ ओवर द अंडर राइटिंग मॉडल विच द अदर अंडर वुड हैव, अदर लेंडर वुड हैव डन हम्म, टेकिंग हिज ड्यू डिलिजेंस। तो उसको मैं थोड़ा सा ही लिवरेज कर रहा हूँ, लेकिन बदला एक और फिनटेक ने आके एक और उसको लोन दे दिया, तो एक लोन के ऊपर लोन, हम्म। इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब उसके पास रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है नहीं और रहेगी। वो डिफॉल्ट करेगा। तो हम्म, देर इज अ नीड ऑफ मोर स्ट्रिंजेंट रिस्क मॉडल्स। आई हम्म, थिंक अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है हमें तो वी शुड स्टार्ट एट अ ग्रास रूट लेवल, जहाँ पे देर हैज टू बी अ फोकस ऑन एजुकेशन, कि हम्म। आप स्कूल्स के अंदर फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, सो दैट दे कैन यूज दिस फंड्स टू एक्चुअली ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ। इट्स नॉट जस्ट वी आर स्पेंडिंग दिस मनी इनटू गैम्बलिंग। Yes. Many circulars from RBI has also come in because I think it's a we are blessed with a very proactive regulator. Yeah. At least it cannot be proactive to the level कि आप चीजें आने से पहले प्रिडिक्ट रोक दे, तो बट हाँ टू द लेवल कि वो ज्यादा ग्रो करके बर्स्ट ना करे उससे पहले एक्शंस आ जाते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ग्रोइंग इन दैट स्पेस, तो Yes. ये उसको पेस अप करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इफ यू हैव सीन नाउ अनसिक्योर्ड लेंडिंग में आरबीआई स्टार्टेड गिविंग सिग्नल कि आप एंड यूज मॉनिटर करो, Yes. wherein companies have started thinking over के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कैसे बनाएं, तो दैट इसका यूज प्रोडक्टिव क्रेडिट के लिए ज्यादा पुश है। हम्म, पीएल पे आई थिंक लास्ट 1-2 क्वार्टर के भी नंबर अगर आप देखोगे तो हम्म। ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। बट अच्छा। दिस इज अ बिजनेस साइकिल व्हिच हैपेंस। रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग को बढ़ाओ, हम्म, इंश्योर विद giving more proper education, and you the lender responsibility is to build robust risk models so that they are not giving away money to a person जो eventually credit risk उनके लिए बढ़ा रहा है या डिफॉल्ट बढ़ा रहा है, बिकॉज इवेंचुअली इट कम्स बैक टू द इकोनॉमी इटसेल्फ। बट अनसिक्योर्ड लेंडिंग के काफी फायदे हुए हैं। हम्म, नाउ वी आर सीइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ, अच्छे मॉडल्स बन के आए हैं। हम्म, यस्टरडे मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, तो मॉडल्स टू द लेवल के आप एक फिनटेक स्टार्ट कर रहे हैं कि अर्नड वेजेस को आप कैसे लेन मार्किंग कर सकते हो, अच्छा। उसके अगेंस्ट कैसे लोन सकते हो। ओके। देयर आर वेरी गुड मॉडल्स जहाँ पे आपको प्रीमियम फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंसिंग पे कंपनीज काम कर रही हैं, करेक्ट। right? So innovation has come in. I think there was a huge requirement. People are looking towards more seamless solution which they can get easy money, मतलब they can get the money without any friction. So I think we are heading towards that time. तो आई थिंक कस्टमर कन्वीनियंस विथ इनोवेशन बहुत हेल्पफुल है। सो फॉर एग्जांपल आपने Correct. देखा होगा कि जब आरबीआई ने स्टार्ट किया एनबीएफसी के पूरे स्ट्रक्चर को रेगुलेट करना, स्केल बेस्ड रेगुलेशन के थ्रू, बेस लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर, Upper layer. upper Hmm. layer, and then of Hmm. course the top 50 which they should be there. Hmm. उसी समय ही there was lot of things happening during the COVID times. You remember when a lot of these NBFC started sort of renting their NBFC licenses, and a lot of Chinese app along with few Indian CAs have been under the radar of the government of India and also from RBI, where they are finding that
predatory pricing was happening, predatory loan techniques were happening. And after that, immediately RBI also chipped in by bringing in digital lending guidance लेके आई RBI. So I think ये बात तो सही है कि इंडियन रेगुलेटर RBI थोड़ा सा प्रोएक्टिव ही है, अदर देन अदर रेगुलेटर्स. दे आर लिटिल विजिलेंट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, एंड दे ट्राई टू कर्ब दैट इमीडिएट. जैसे आपने बताया ना, वो एंड यूज ऑफ फंड, एंड यूज ऑफ मॉनिटरिंग, ये एक्चुअल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है ही पहले से. मतलब कॉर्पोरेट में तो बड़ा टिकट साइज है, तो एंड यूज तो बहुत रिलेवेंट है. आपने भी क्लिक्स में काम किया, तो आपने जब एसएमई के लार्जर चंक रिलीज किए होंगे तो देखा होगा कि एंड यूज के लिए क्या जा रहा है, कहाँ पे जिसके लिए लिया है उसके लिए यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बट अनसिक्योर्ड में पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन के लिए अनप्रोडक्टिव लोन रीजंस होते हैं. सो आई थिंक ब्रिंगिंग इन व्हाट यू कॉल एंड यूज वुड डेफिनेटली, एज यू सेड, एंड द बेटर प्राइसिंग. एंड और इसके अंदर ना आई थिंक जो हमारा डीपीआई में डेवलपमेंट्स हुए हैं, गेटिंग अकाउंट एग्रीगेटर्स एक्सेट्रा, दैट हैज एक्चुअली वो रेल रोड्स, मतलब कई बार तो एज अ लेंडर अगर मैं देखूं तो मैं रिस्क कैसे अपना अर्ली वार्निंग सिग्नल, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं थे और अब बेटर हो रहे हैं. इट्स लाइक पहले रेल रोड्स नहीं थी. एक एनबीएफसी के लिए अपने कस्टमर को या पोर्टफोलियो मॉनिटर करने के लिए दो ही तरीके थे, या फिर तो वो ब्यूरो का डेटा लेता था. करेक्ट. ठीक है, सॉफ्ट पुल के थ्रू आपने ट्रेड लाइन देखी कि हाउ इज कस्टमर परफॉर्मिंग ऑन नॉट ओनली योर पोर्टफोलियो ऑन योर लोन बट ऑन द अदर ट्रेड लाइंस. और दूसरा वो अपने रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड दिखता था. नाउ विद डीपीआई लाइक अकाउंट एग्रीगेटर, ही कैन हैव एक्सेस टू रियल डेटा कि भाई एक्चुअली बैंकिंग में क्या हो रहा है. तो इवन इफ देयर इज नो रिपोर्टिंग ऑफ डेटा टू ब्यूरोज, किसी तरह मिस हो जाता है या लेट रिपोर्टिंग, नाउ दे कैन एक्चुअली सी कि भाई एक घंटे पहले कस्टमर के साथ कितने चेक बाउंसेस हुए हैं, एंड दे कैन एक्चुअली एजुकेट, come into picture with the customer at the right time कि भाई if they need help how they can restructure the loan etc, that can be done and proactive steps can be taken by a lender to actually assist customer. पर आप देखो एक और चीज जो मुझे लगती है कि काफी हेल्पफुल हुई है, स्पेशली आई कम फ्रॉम अ अकाउंट एग्रीगेटर बैकग्राउंड, तो मैं थोड़ा ज्यादा उस पर बोल सकता हूँ. हाँ हाँ. आप स्मॉल टिकट साइज लोन की बात करो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ अ कस्टमर लैंड्स अप इन अ डेट ट्रैप. करेक्ट. आप 10-15 हजार की लोन देने की बात करते हो, ठीक है, विदाउट एक एनबीएफसी को इमेजिन करते हैं जहाँ पे वो एक बार नैच प्रेजेंट करता है, तो नैच अगर वो बाउंस होता है तो उसको एक चार्जेस, बैंक चार्जेस लगाएगा, एक एनबीएफसी चार्जेस लगाएगा. अब 15 हजार के लोन पे आपने 1-2 हजार के चार्जेस लगा दिए, आप 15-20% तो उसका कॉस्ट वैसे ही बढ़ा रहे हो. बढ़ा रहे हो. So these are not feasibility, मतलब these are not feasible products. Now with account aggregator at least you can have a look at balance. Yes. प्रेजेंट करने से पहले उसको आप बचा सकते हो. तो अब आप मानो कि अगर कस्टमर ने एक बार बाउंस किया, दो बार बाउंस हुआ, तीसरी बार बाउंस हुआ, अब वो चाह के भी ना वो लोन रीपे नहीं करना चाहता, करेक्ट. क्योंकि उसका तो आउटस्टैंडिंग ही बढ़ गया इतना, और उसको तो डिफॉल्ट किया आपने, उसको इनफॉर्मल लेंडर के पाथ पे भेज दिया जहां और पे उसका उसका ये फिर लोन ट्रस्ट खत्म भी नहीं हो चला रहा है, जाता है. और उसका उसका ट्रस्ट चले ट्रस्ट, गया. उसका जो ट्रस्ट पहले जो मर्चेंट लेंडिंग होती, जो मर्चेंट्स लेंडिंग करते थे, रिमेम्बर, जिसमें बहुत हेफ्टी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, वो उस कैटेगरी को समझने लगता है. करेक्ट. वो एक्चुअल में फॉर्मल में होके इनफॉर्मल का ट्रीटमेंट पा रहा है एक्चुअल में, देखा जाए तो. और इसके बाद एक और इससे इश्यूज होते हैं. जब हमने वी वर इंटरेक्टिंग विद सम लाइक कंपनी विद हु वर फंडिंग टू ईवी ड्राइवर्स, वो कहते हैं जब एक दो बाउंस हो जाते हैं या आपका मिनिमम बैलेंस से कई बार अकाउंट नीचे चले जाता है, तो कस्टमर्स का ना डिजिटल पेमेंट्स खत्म हो जाते हैं, वो पैसे ही रखना बंद कर देते हैं उस अकाउंट में. करेक्ट. वो बोलता है कैश रखो क्योंकि कल को पैसा डाला तो निकल जाएगा. तो आप इसके रेपरकशंस आप देखो कहाँ तक जाते हैं. यस. यस. तो तो देखा हमें जो देखा भी जाए तो उसका, स्टेप्स लेने. हाँ, हाँ. देखा जाए तो उसका कंजम्पशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. बिकॉज ओवरऑल कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, जो अभी इनकम टैक्स की छूट मिली है 12 लाख के टैक्स में, कोई कोई की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स पेयर के हाथ में ज्यादा इनकम हो और वो स्पेंड करे इकोनॉमी में, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो एटलीस्ट 10x, अगर हम पॉजिटिवली देखें तो एक्सट्रीम साइड्स. तो अगर इस तरीके का प्रेडेटरी प्राइसिंग होगा, नॉन डिस्क्लोजर होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे लोन जर्नी में, तो फिर वो ट्रस्ट नहीं आएगा फिर अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर. अग्रीड अग्रीड. आई थिंक रेगुलेटर का भी काफी रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू की फैक्ट स्टेटमेंट्स. अब आप देखोगे रिसेंटली जो दो एनबीएफसीज भी बैंड हुई थी टुवर्ड्स डूइंग अ बिजनेस, आई थिंक इट वाज अ वेरी दीज स्टेप्स एक्चुअली शेक्स द होल इंडस्ट्री. वहां पे लोग सोचने लगते हैं कि हम क्या करें. लॉजिकली इट केम आउट एज अ अंडरस्टैंडिंग सबको कि कहीं ना कहीं एपीआर पे कैपिंग करनी है. यस. एटलीस्ट नाउ जो आप प्राइसिंग की बात कर रहे हो, हाँ.
predatory pricing जहाँ पे lending में आप इतना higher pricing charge करते हैं, I think these steps indirectly has given a signal to the industry कि भाई आप ज्यादा charge नहीं कर सकते. Yes. Bring your model, get your model so robust that आप इसी pricing में operate करो, and even then you are profitable. Yes. So now people have to come up with that innovation, and it has actually happened that at least pricing पे तो मुझे clear दिखता है कि while we interact with many lenders in the community and during my interaction, I clearly see एक benchmark हो गया है कि 30-40% से ऊपर नहीं जाना है APR पे, and it eventually solves for customer problem also. सही बात है. इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जब ये डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस आई थी, रिमेंबर, जिसमें आरबीआई ने बोला था कि एलएसपी डीएलएस एलएसपीस को की फैक्ट स्टेटमेंट दिखाना होगा लोन की जर्नी में. उसमें और एपीआर के डिस्क्लोजर्स हैं जो आपने अभी बताया. एपीआर जो एनुअलाइज्ड जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे, अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन विद द एक्चुअल लेंडर, द आरई, दैट इज द बैंक हम्म. एनबीएफसी. आप यकीन नहीं करेंगे, आरबीआई ने एक एनबीएफसी को केवल इसलिए बोला कि अपना ये लोन प्रोडक्ट बंद कर दो क्योंकि वो की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा था जर्नी में. और उसका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इतना बड़ा लेंडर है वो लेंडिंग एनबीएफसी के साइड में. उसका हर समय उसकी कंपनी का कॉल आता है, आप लोन लेंगे क्या, आप जानते हो क्या नाम है, बोल रहा हूँ. बट हाउ कैन ये ऐसा क्यों होता है, मतलब इतना स्टेब्लिश्ड प्लेयर इतने सालों से काम कर रहा है. आरबीआई के दसों ऑडिट्स वो झेल चुका है, आरबीआई के इंस्पेक्शंस को हैंडल किया हुआ उसने. उसके उसके पास बेस्ट से बेस्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस और रिस्क ऑफिसर बैठा हुआ. उसके बाद एक छोटा सा डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करना है. तो इससे मेरा क्वेश्चन है कि इनोवेशन और रेगुलेशन, क्या हम इनोवेशन के चक्कर में रेगुलेशन को ध्यान नहीं करते हैं, या रेगुलेशन के चक्कर में इनोवेशन को इम्पैक्ट करते हैं? व्हाट डू यू से, क्या लगता है? I think ये 3 का ट्रायो है, रेगुलेशन, इनोवेशन, कंप्लायंस यस. और टेक्नोलॉजी. ये हाँ. ये 4 चीजें ना आपको मिक्स एंड मैच करके करना पड़ेगा. दूसरा, एक मतलब शायद आप भी ये अभिषेक अग्री करोगे, और फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक व्हाट आई एम सीइंग इज कि रेगुलेशन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, राइट? बहुत ज्यादा है, बहुत तेज आप गति से और बहुत मतलब चीजें से. हमने मैं और आप उस हम दोनों ने वो एरा देखा हुआ है जहाँ पे सर्कुलर्स की फ्रीक्वेंसी जिस रेट पे आते थे, इट हाँ. यूज टू बी मच लेसर. आज यस. आज के टाइम में आप मतलब मुझे लगता है कि शायद एक महीने में शायद एक सर्कुलर या उससे भी ज्यादा सर्कुलर्स आप पाते हो. करेक्ट. इट एंड व्हेन दी सर्कुलर कम्स, इट कम्स विद अ कंप्लायंस लॉट ऑफ. burden on a regulated entity. तो कई बार फ्रॉम अ मतलब, see, I'm not just defending anyone, but eventually these are all my thoughts and या. while interaction which I do. But for any RE to comply with the compliance, with all the new compliance which are coming up as adding, is becoming very tough. Also, this stuff is very high for entities जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हो गए हैं. हम्म. आज आप करोड़ों के डेटा पे बैठे हो, करेक्ट. और कोई लॉ आता है जो उस डेटा को गवर्न कर रहा है, तो हम्म. आप उसको उस लॉ को कंप्लाई करने में इस लार्ज वॉल्यूम पे इज अ बिग चैलेंज फॉर एनी बिगर एंटिटी. हम्म. स्मॉल एंटिटीज आर अजाइल, करेक्ट. बट उनके साथ यहाँ पे इशू क्या आएगा, तो कंप्लायंस कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड, यस. राइट? तो सो इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ ये 4 चीजें है ना, जो टेक्नोलॉजी है, कंप्लायंस है, रेगुलेशन, ये बैलेंस आपको करना पड़ेगा. डिफिकल्ट टू डू राइट नाउ बिकॉज इनोवेशन जिस स्पीड पे हो रहा है हम्म. और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से भाग रही है, इट इज करेक्ट. वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रन विद इट अलोंग साइड. तो यस. प्रॉब्लम वो है. तो आई एम श्योर कि इट विल सेटल. अब कंपनी रेगुलेटर भी ऐसा नहीं है कि जिस वो एक बार में बार बार कर देता है. वो इट कम्स अप विद न्यू टेक्नोलॉजी, इट आल्सो अंडरस्टैंड, इट डू सम ऑडिट्स. मुझे क्या लगता है कि शायद एक हमारी कम्युनिटी के थ्रू हम लोग जो सॉल्व 6 साल पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, 6-7 साल पहले, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच वी वर सॉल्विंग वाज जो इंटरप्रिटेशन है, हम्म. जो रेगुलेशंस का आ रहा है या ऑडिट्स होते थे, पीपल यूज टू शेयर. ऑब्वियसली दे वर नॉट सो वोकल, बट थोड़ा सा इंसाइट्स आपको दे देते थे कि यार ये सब कंसर्न्स हैं, करेक्ट. सो दैट द अदर पर्सन इज रेडी हम्म. इवेंचुअली. तो मुझे ये लगता है कि although regulators have done a great work in terms of bridging that gap, जहाँ पे regulator से बात करना was मतलब it was not very there were not many channels, I would say. यस. आज के टाइम में RBI है just taking a lead in terms of arranging these sessions वो with फिनटेक RBI. फिनटेक हाँ, डिपार्टमेंट fintech, भी आरबीआई का, जिसके अंदर वो भी. लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं. यस. ठीक है, with now SROs have come in which have bring in another layer of understanding, and they have become a kind of representatives of the industry which
although there were industry representative, but these now have dedicated work of कि हम इसको solve कराना है gray. Nobody wants to operate in gray area, and we have all seen कि gray area में करके what has happened to PPI cards companies, right? यस What यस, has happened to many other companies in terms of जब वो violate कर रहे हैं law. रातों रात तो प्रोडक्ट बंद करना पड़ जाता। एंड इट इज नॉट दैट कि मतलब शुरुआत में जब ऐसा हुआ तो लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कंपनीज विद सच अ बिग लार्ज वॉल्यूम्स डूइंग लार्ज वॉल्यूम्स हैविंग सो मेनी एम्प्लॉइज, हम्म। अगर उनको हिट हो सकता है तो स्मॉल एंटिटीज के लिए तो ये इट वाज क्लियर सिग्नल कि भाई यस अगर आप गलत ग्रे एरियाज में ऑपरेट करोगे या कुछ गलत काम कर रहे हो देयर इज नो सेकंड थॉट, इट कैन करेक्ट। बी शट डाउन एट एनी टाइम. इवेंचुअली इट सेंड अ मैसेज टू ऑल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा कि भाई इन्वेस्ट करना है तो वी हैव टू हैव गवर्नेंस ऑल इंटैक्ट विद एनी कंपनी वी इन्वेस्ट इन. So it had a very good impact overall in the industry how the यस new startups are coming in. या तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नाउ द गुड थिंग इज देयर आर वेज, देयर आर कम्युनिकेशन चैनल्स, देयर आर प्लेटफॉर्म थ्रू विच companies are getting clarifications on what they can do, what they cannot do. Also, they have a voice where they have a representation where they can put up their query. Regulators are coming up with sandboxes. That is यस one other very good way कि regulatory uh, sandboxes के through आप कोई भी innovation को start करो और then see what is happening and then make it open to the market. I think for any startups, this can be one of the approach they can come up with innovation using sandboxes and या working with industry players जो उनको या। इन पे guide कर सकते हैं. तो आई थिंक ऑल दोस फाउंडर्स, यंग फाउंडर्स जो हमको देख रहे हैं, आई थिंक उनके लिए ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं समराइज करता हूँ। पहली बात तो ये कि इफ़ यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे सिक्योरिटीज भी है, इंश्योरेंस भी है, फिनटेक भी है, NBFCs भी हैं, बैंक्स हैं, वेदर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हो, फॉरेन बैंक्स हो, या फिर पेमेंट्स बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, या फिर NBFC हो, वो 1,000 करोड़ के नीचे की NBFC हो, या मिड लेयर हो जहाँ पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, या फिर टॉप लेवल में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिगरस मॉनिटरिंग होती है RBI की, उस स्पेस में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक सैंडबॉक्स जो कि RBI का भी है, जहाँ पे लॉट ऑफ कोहॉर्ट्स हो चुके हैं, 4 कोहॉर्ट्स हो चुके हैं अभी तक, अभिषेक। उसके बाद फिर अगर सिक्योरिटीज मार्केट है तो सेबी का भी एक फिनटेक उसका कोहॉर्ट है, जहाँ पे दे इनवाइट startups to get that kind of visibility and work along with the regulator to bring compliant product, I would say, and get the sandbox to operate on the data. Third is IRDA का, because हम देखते हैं आजकल इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपनीज लाइक एको है, या फिर आई थिंक FinSol, I फिट्जॉल। think FinSol's हाँ, सो दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद फिर गिफ्ट सिटी के अंदर में, इफ दे कैन रजिस्टर एंड ऑपरेट फ्रॉम देयर एज एन एंटिटी, एंड गिफ्ट सिटी का भी एक अलग से प्रोग्राम है अंडर IFSCA। उसके बाद IFF जैसा फोरम ऑलरेडी है जो उनको गाइडेंस, सपोर्ट, कोलैबोरेशन करता है। आई थिंक टुडे ओनली, अभिषेक, आप लोगों ने डेटा प्राइवेसी के ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और आप उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट द रोड मैप, स्पेशली द यंग फाउंडर्स हु आर वाचिंग, कि डेटा प्राइवेसी में क्या आ रहा है, कि व्हाट कैन इम्पैक्ट, व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट, आगे क्या इसमें, व्हाट आर द रोड मैप लुक्स लाइक। डेटा प्राइवेसी में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं. There's a feedback, I think extended deadline which has been done. या The feedback has to go to the regulator. It's inspired by GDPR. I think उससे better ही the feedback is कि this is coming up, this can be one better way of doing it. करेक्ट। मतलब a better uh, rule and which is coming up, and it will bring a lot of opportunity. Like जैसे आज मेरा discussion हो रहा था, there are a very big opportunity for consent managers जो DPDP के अंदर ingrained concept है. हम्म। There are so many consent which a regulated entity takes, करेक्ट। and उसके लिए वहाँ पे interoperable consent managers की बात की है in terms of rules. हम्म। So for startups, I think that is one of the area where they can build products in. हम्म। The other ways is कि आज के टाइम में the why DPDP came in was because of the misuse of data. We have करेक्ट। seen हमने एक जगह consent दिया and we have started getting calls from Tom, Dick, Harry. हर जगह से कॉल आ रही है and like blasted with calls and we don't know कि भाई उनके पास डेटा आया कहाँ से था. सही बात। Now what data protection ensures is कि there is a purpose binding.
देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज अ क्लियर नोटिस टू द कस्टमर कि वो किस चीज के लिए कंसेंट दे रहा है, किस पर्पस के लिए दे रहा है, हम्म कितने टाइम के लिए दे रहा है, हम्म और वो उसका डेटा लाइफ की क्या है, उसका डेटा लाइफ क्या कहता है. हम्म तो दिस विल, so innovation on consent manager side. The other part is how this data is being stored and how it can be used. Logically, we can talk about RegTech solutions wherein they can also somebody can build a RegTech solution where they can talk about once the data is shared with any data fiduciary who is हम्म requesting the data, how is he ensuring that this data is not being used for any other purpose and, apart from the desired purpose. करेक्ट Logically, somebody can build product on data compute thing. आज के टाइम में अगर आप देखोगे व्हाट, मतलब आई वर्क विद कंपनीज जहाँ पे हमें ट्रैकर्स मिलते थे फॉर कस्टमर डेटा. करेक्ट आज मुझे उस पे अब टॉप अप लोन निकालना है तो वी यूज टू एक्चुअली डू सम इंटेलिजेंस ऑफ कब कैसा चल रहा है इसका पोर्टफोलियो, उसके बेसिस पे हमने एनरिच कर दिया डेटा, उसको बना दिया. और वही ट्रैकर अलग अलग डिपार्टमेंट से घूम रहा है. करेक्ट राइट. तो सिस्टम्स आज मतलब विद डीपीडीपी एक्ट आई थिंक देयर इज अ लॉट मेनी स्कोप ऑफ सिस्टम्स डेवलपमेंट जहाँ पे, और इवन रेगुलेटेड एंटिटीज को भी काफी डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने लेवल पे, जहाँ पे ये पर्पस बाइंडिंग दे कैन इंश्योर विद द डेटा. करेक्ट एंड देयर हैज टू बी सम ऑडिट ट्रेल मे बी विच कैन कम इन पिक्चर कि आप कोई रेगुलेटर आता है, हाउ कैन दे प्रूव दैट दिस डेटा इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस करेक्ट apart from this. So I think these are some of the learnings. And अभी थोड़ा draft stage में है तो we'll get to know more once the rules are out. But 1 or 2 years is somewhere जो implementation guidelines दिख रही हैं लोगों को. हम्म And we'll see more consent managers coming into from different sectors. हर sector का maybe एक consent manager होगा. There is a discussion on interoperability among consent managers. तो हम्म अगर एक ईरा आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि शायद ये फ्यूचरिस्टिक है, और विच कैन बी रियल थिंग ऑल्सो, कि आपका कस्टमर का जो डेटा है, जो भी उसने कहीं पे भी ट्रांजेक्शन किए, मे बी ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियल डेटा तो लगभग सारा अकाउंट एग्रीगेटर पे आ गया है. हम्म योर टेलको डेटा, योर हेल्थ डेटा, आपको इंश्योरेंस देना है तो हम्म आपने डेटा लिया इंश्योरेंस के लिए, आपको कस्टमर का देखना है कि फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने ए से डेटा लिया. करेक्ट द अदर हेल्थ डेटा यू गेट इट फ्रॉम सम ऑफ द कंसर्न मैनेजर हु इज इनटू हेल्थ स्पेस. और हम्म डेटा को, दोनों डेटा को कंज्यूमेबल फॉर्मेट में बना के यू आर गिविंग मोर पर्सनलाइज ऑफर्स टू कस्टमर्स. हम्म राइट. आज के टाइम में मेजरली इंश्योरेंस आर केप्ड एट व्हाट इज योर एज, और एज के बेसिस पे आपको देते हैं. इट्स अ वेरी वनीला प्रोग्राम. वैलिड Although there are companies who have innovated, but not much. But with this more real data, there is a there would be like blast of more personalization and हम्म customization of products, हम्म very specific to the companies. So हम्म this is a evolving space, so we'll have more insights with time. Abhishek, for example, for a layman, let's say think of a delivery personal from Flipkart, Amazon, Swiggy, Zomato. हम्म उसको ये समझना है कि इंडिया में बहुत सारे लीडर्स हैं, वो डीपीआई की बात करते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई. तो ये डीपीआई अगर उनको समझना है कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन देयर पर्सनल लाइफ, तो उसके बारे में बताएंगे. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द मेजर ब्लॉक्स ऑफ डीपीआई, और उसके बाद हाउ दे कैन बेनिफिट आउट ऑफ द एंटायर डीपीआई. सम वे और द अदर वो यूज कर रहे होंगे, बट उनको अगर अच्छे से समझना हो कि वो कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है, तो फॉर आवर यूजर्स इन अ सिंप्लीफाइड वे. See, अभिषेक, आई थिंक इसको ना हम 15 साल पहले, या जब ये तो ओवरऑल डीपीआई का थॉट प्रोसेस चल रहा था, वो कैसे इवेंजलाइज हुआ, हम्म उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं वो आपको देता हूँ. हाँ हाँ. तो मेजरली इंडिया में फाइनेंशियल अकाउंट, बैंक अकाउंट भी पेनिट्रेशन बहुत कम थी. यस. राइट नाउ टुडे एवरी एडल्ट हैज बैंक अकाउंट. करेक्ट. तो हमें शायद आज के टाइम में जो नए जेनजीज आ रहे हैं, दे विल नेवर थिंक ऑफ कि वो वर्ल्ड कैसा था, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रबल एट दैट टाइम. देयर वर मल्टीपल आईडीज. तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्व करना था, तो देयर वर थ्री मेजरली पिलर. हम्म पहले तो उनको इनेबल करना था लोगों को कि दे हैव टू गेट देम कि उनके पास कोई फाइनेंशियल सर्विसेज एटलीस्ट पहुंचे. हम्म जब वो पहुंच जाएं तो उसके बाद दे हैव टू एम्पावर देम कि वो लोग ट्रांजैक्ट कर पाए. और ट्रांजैक्ट करने के बाद जो थर्ड लेयर वाज कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस के थ्रू उन्होंने डेटा बनाया, हम्म वो डेटा को यूज करके दे कैन गेट सम personalized services. So logically, three-layered approach.
इसको मेजरली इंडिया स्टैक भी कई बार बोल देते हैं, उसके अंदर डिफाइंड होते हैं। इट्स ओपन एपीआई Hmm. wherein the first layer is one of the use cases Aadhaar, Correct. which enabled everybody to prove his identity. कि मैं I can prove myself कि who I am. The second layer was your payment layer. पेमेंट लेयर के अंदर अगर आपको याद हो कि जब एटलीस्ट इन माय चाइल्डहुड आई क्लियरली रिमेम्बर वी यूज टू गो टू शॉप्स एंड वहां पे अगर आप कार्ड यूज कर रहे हो Hmm. और वहां तो दे यूज टू आस्क कि आपको 3% एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। देयर वाज क्लियरली वहां स्टैंडीज लिखी होती थी कि हाँ हाँ, फॉर कार्ड डिजिटल पेमेंट यू विल गेट एक्स्ट्रा पेमेंट। तो मर्चेंट तो क्या कहते हैं कि मुझसे लेता है बैंक 3%, मुझसे बैंक लेता है तो मुझे मैं आप दे दो और इस कार्ड यूज कर लो, नहीं तो ट्रांजेक्शन कैश दे दो आप। तो हाँ देन इवेंचुअली इट वाज अ बिग बैरियर, तो हेंस द सेकंड लेयर वाज यूपीआई, जहाँ पे उन लोगों ने जीरो कॉस्ट पी टू पी ट्रांजेक्शंस। करेक्ट। थर्ड लेयर वाज डेटा लेयर, जिसमें डिजी लॉकर है आपका, अकाउंट एग्रीगेटर इज वन ऑफ द यूज केस। हाउ कैन यू एम्पावर हम्म। customer with their own data so that he can use it for various purposes. One can be one of getting financial services. To solve for financial inclusion, these were the three stages we have to solve for. करेक्ट। हमने आधार से आइडेंटिटी सॉल्व किया, यूपीआई सॉल्व कर दिया, थर्ड लेयर पे काफी काम चल रहा है ऑलरेडी। अकाउंट एग्रीगेटर के साथ हम देख रहे हैं 10,000 करोड़ के लोन्स जा रहे हैं, अगर सिर्फ लेंडिंग की बात करें। अच्छा। वेल्थ एडवाइजरी साइड पे अगर आप देखोगे, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं हम्म। वो, वहाँ उनका पेनिट्रेशन इतना कम है कि यू कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड कि ये वेल्थ एडवाइजरी लास्ट माइल तक जा सकती है। हम्म। हेयर इन डिजिटल players can come in, like robo advisory is one of the way where you can take this wealth advisory to the last mile, because हम्म। digitization is the only key where you can reach to the bottom of the pyramid people, right? करेक्ट। तो अगर आपने बात करी कि how does a gig worker like a person who is working with Swiggy हम्म। वो इंटरेक्ट कैसे कर रहा है हम्म। डिजिटल पेमेंट से, तो अगर मैं बात करूँ तो उसने पहले अब बैंक अकाउंट खुलवाने जाएगा तो पहली बार बायोमेट्रिक यूज कर रहा होगा वो, करेक्ट। या अपने केवाईसी शेयर कर रहा होगा टू डिजी लॉकर। आई थिंक ही इज हम्म। इंटरेक्टिंग विद डीपीआई। करेक्ट। जब वो पेमेंट लेने जाता है तो ही कलेक्ट्स कैश, और सॉरी ही कलेक्ट डिजिटल पेमेंट वाया यूपीआई, तो अनदर वे ऑफ यूजिंग इट। हम्म। वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेता है तब वहां पे केवाईसी सबमिट करता है डिजी लॉकर के थ्रू। आई हम्म। थिंक दैट इज अनदर वे ही यूजेस इट। तो आज के टाइम में आम आदमी इतना डीपीआई को यूज कर रहा है हर नुक एंड कॉर्नर पे, वी आर सराउंडेड बाय डीपीआई, एंड आई थिंक दैट इज द सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया। हम्म। हाँ, इनफैक्ट यूपीआई बहुत ही फेमस है, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए है, और आई थिंक बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हैपनिंग एवरी मंथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वैल्यू विच इज बीइंग कमिंग। Recently, I think Global FinTech Fest में, which happened in Mumbai last year. Remember, the way we have UPI, the ULI was launched by the ex-governor now, Mr. Shaktikanta Das. So it is, ये बोलते हैं कि the way UPI is for payment, ULI, Unified Lending Interface, is for lending. तो ये किस स्टेज में है, वेयर हैट इज रीच्ड, इसको उसका पायलट हो रहा है, एंड हाउ कैन वी सी मोर डेमोक्रेटाइज्ड वे ऑफ लेंडिंग, मोर एक्सेसिबल लेंडिंग, मोर ट्रांसपेरेंट लेंडिंग हैपनिंग। सो अभिषेक, यूएलआई पहले जो इसका थोड़ा रीनेम अभी किया है इन्होंने, इससे पहले ही आरबीआई फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के नाम से, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के नाम करेक्ट। से था। हम्म। मेजरली दे स्टार्टेड विद कार्ड फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स, हम्म। वहां पे किसान क्रेडिट कार्ड में ये सक्सेस स्टोरी थी जो मुझे पता है, एंड देन दे थॉट कि व्हाई डोंट वी unbundle it and get it for other institutes, like which can take value in terms of attaching to a single platform and unlocking and enabling many services जो कि एक जनरली लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूज करता है थ्रू वन प्लग एंड प्ले मॉडल। करेक्ट। One of the big thing which has happened with ULI is one clear data type which I think will democratize a lot of financial services for at least bottom of the pyramid is land digitization of land record. तो हम्म। देर आर अराउंड 6-7 स्टेट्स जहाँ पे डिजिटाइजेशन हुआ था, हम्म। वहाँ के रजिस्ट्रार और स्टेट बॉडी के साथ काम करके वो डेटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट दे हैव enabled वाया यूएलआई। तो अगर आप देखोगे, हमारे यहाँ मेजरली फार्मर नेटिव कंट्री था, तो हम्म। फार्मर्स के पास जो कोलैटरल था, या इट वाज आइदर गोल्ड, इट वाज और आइदर इट वाज फार्म लैंड।
farmland. Now these farmers can use their farmland to actually unlock credit. ठीक Okay. है, तो ये मुझे एक बहुत बड़ा यूज केस दिखता है अपार्ट फ्रॉम अदर डेटा सेट जो यूएलआई पे लेके आ रहे हैं, जैसे डेयरी डेटा हो गया, Hmm. तो इट कैन एक्चुअली सॉल्व फॉर डेयरी फार्मर्स। तो Yeah. वहां पे तो सो गेटिंग दी सो आरबीआई इज प्लेइंग अ की रोल इन टर्म्स ऑफ enabling एज अ enabler ऑफ गेटिंग दीज डेटास, बिकॉज दे हैव टू वर्क विद लोकल स्टेट लाइक जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इट्स अ स्टेट मैटर। तो Correct. लोकल स्टेट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपको मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को लेके आना पड़ेगा जो इस डेटा के ऊपर थोड़ा मसाजिंग कर सकते हैं एंड कैन give result in a manner that you can ingest in your systems and use that for getting inferences. So I think ULI will play a key role in coming times. Account aggregate is one of the part which with ULI. So there are multiple services which ULI is providing, but these are the key things जो मुझे लगता है काफी help करेगा. Right now, what I know the update I have is that they have successfully piloted for Kisan credit card and worked fine. Mm-hmm. Now they have enabled this platform with bankers, so majorly PSUs or I think some private sector banks would be part of it. They've are now opened up with one or few of the NBFCs also. I think Aditya Birla is one of the company which is live on their platform now. Yeah, अभी वो चल रहा है in the process. With once they have tested, once the ecosystem more evolved, they will open it up for other entities. But major beneficiaries जो दिख रही हैं apart from private companies, we'll see RRBs, PSUs taking a big advantage of this platform going away, because for them it becomes a single stop for all the services which generally a lender or a RE uses. IFF में you are of course engaging the entire BFSI community. आप सबके साथ डील कर रहे हैं। तो हमने आरबीआई एरिया को तो डिस्कस किया, फिनटेक्स ऑन द आरबीआई लेंडिंग पेमेंट स्पेस। सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का और पार्टिसिपेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, भले वो स्टॉक ब्रोकर हो, एआईएफ्स हो, और उसके एरिया में, और दूसरा आईआरडीआई जिसके पास बहुत सारी लाइसेंसिंग रिजीम है, कॉर्पोरेट एजेंसी हो, वेब एग्रीगेटर हो, इंश्योरेंस ब्रोकर हो, इंश्योरेंस का लाइसेंस हो। ये दोनों के स्पेस में क्या चल रहा है? आर दे आल्सो प्रमोटिंग लॉट ऑफ फिनटेक्स? डू वी हैव फिनटेक्स हु आर, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस में तो काम चल रहा है, वी हैव सीन द वे लॉट ऑफ फिनटेक्स हैव गॉन ऑन बिकम इंश्योरर, बन गए, वो लाइसेंस ले लिए। But anything else which these two regulators are doing to increase one, the insurance coverage? Although the government of India schemes are providing some support to low income groups, but these regulators, one, and second, wealth penetration, the wealth investment, because in India the way we see investment and the way they see investment is quite different. So wealth management के point of view से for SEBI एंड इंश्योरेंस आउटरीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इरडा, इन दोनों में क्या कुछ होप है इन फ्यूचर डेज फॉर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट अफ्लुएंट, टू बी अफ्लुएंट, और द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास? तो जैसे मैंने अभिषेक आपको बताया कि वेल्थ स्पेस में अकाउंट एग्रीगेटर का आने से देयर इज अ ह्यूज ट्रैक्शन कमिंग इनटू स्पेस फ्रॉम स्पेशली इन द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज के टाइम में, ऑल्दो HNI पे स्पेसिफिक अगर अभी मैं देखता हूँ रिस्ट्रिक्टेड है, बट wealth advisory was always for HNIs majorly in India what was happening, and it was there was a reason why it was restricted, because eventually आप उन्हीं से पैसा कमा सकते हो। Right. Now companies are, because आपका cost of onboarding and getting data from customers have become so less and their journeys are so seamless. Now companies are thinking कि how can we go to last mile, और last mile में there are companies, I think there are startups working on how they can enable insurance to last mile, how they can enable small mutual funds या आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टू द लास्ट माइल, ऐसे SIPs कैसे ला सकते हैं। तो नाउ बिकॉज डेटा इज इजीली अवेलेबल, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कस्टमर वेरी इजीली, because of account aggregators, I see a great number. We'll see more investment advisors, especially digital investment advisors, coming into space. We'll have more robo advisors who will take this wealth advisory to the last mile. तो वो अभी ऐसा नहीं है कि अभी हो गया है, लेकिन हाँ, the space was evolving. Now we are at the stage now many companies will come. There is a lot of investment which can happen. More philanthropies work is being done on in this space, so that
we can unlock this value to the last mile, because it is not just giving advice, it is about education also. So Yes. in the last mile एजुकेशन के साथ एडवाइस आता है, बिकॉज फॉर देम इट वाज ओनली एफडी अगर कुछ है तो, या Yeah. बैंक डिपॉजिट है, उसके अलावा उनको कोई दुनिया नहीं दिखती। तो Yes. आपको पहले उनको समझाना पड़ेगा, फुटप्रिंट्स बनाने पड़ेंगे, इनकम करवाना पड़ेगा। बल्कि कई सारे लेंडिंग मॉडल्स में मैं स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स का भी देख रहा हूँ कि दे इनकरेज कस्टमर्स कि अगर आपने लोन लिया है तो यू शुड ऑल्सो सेव। आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्कुल लास्ट माइल, कि आप थोड़ा पैसा बचाओ भी, Mm-hmm. सो दैट एट द टाइम व्हेन देयर अनसर्टेनिटी कम्स, तो Mm-hmm. लोन में क्या होता है, वो तो 100% डिफॉल्ट होता है अगर आपका, बिकॉज देयर इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइम दे स्पेंड ऑन डूइंग द जॉब। तो अगर वो ई रिक्शा चला रहा है, उसकी Mm-hmm. 3 दिन तबीयत खराब हुई तो 3 दिन का पैसा गया, सही विच बात। ही कैन नॉट कवर अप, राइट। अगर तो एक महीने उसकी वजह से मेरी एक महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो वो 3 महीने चलती रहती है। सही तो बात। दीज कंपनीज आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग देम, सो दैट दे कैन सेव मनी and use that money as an emergency fund. Mm. So a lot of work, I think wealth advisory पे तो there are the many companies who have tried, थोड़ा difficult है model, but with DPIs into picture, I think somebody will surely crack. Also, here there is a need of more philanthropy money to be pushed in, so that products can be developed at that level, क्योंकि a lot of work needs to be done, because जो UI UX हम interfaces use करते हैं, this has to be a very different for the people जो last mile पे है। Not about UI UX, is about product curation also, कि Yes. उनको किस तरीके के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी चाहिए। Mm-hmm. So that is something which I think So will surely happen in coming times. जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्पेस में आरबीआई ऑफ कोर्स डज लॉट. I'm not sure how much SEBI and IRDA are actually. I see lot of their documentation coming in terms of they increasing the hope on covering mass number of individuals into their realm of financial offering. Financial inclusion, of course, is important, which I think somebody has to sort of bring it, especially for the low income marginal groups. क्रिएट दी हैबिट ऑफ सेविंग्स, ये तो एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ओपन एंडेड है. बट इसमें कोई कोई स्पेसिफिक यूज केस या ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर अवेलेबल है जिसके बेसिस पे कोई काम कर सकता है, या बहुत वेग है, देयर इज नो डेटा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एंड वी हैव टू डू सम गेस वर्क बेसिस की इन्वेस्टमेंट कर रहा है? क्योंकि अभी देखिए रिटेल में द मोमेंट एफआईएस हैव मूव्ड देयर मनी इन म्यूचुअल फंड्स, यू हैव सीन हाउ इंडियन रिटेल हैज पम्प्ड इन इनटू द म्यूचुअल हम्म। फंड. दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड चलता है. हम्म। सम करेक्ट। अवेयरनेस का म्यूचुअल फंड चलता है. पिछले 4 साल से तेंदुलकर को और धोनी को देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड चलता है. तो एक वो हुआ है बिकॉज ऑफ एमफीज इनिशिएटिव्स. तो इसमें कोई इंडिकेटर है ऐसा जो कि जस्टिफाई करता है उसको? आई रिमेम्बर सम रिपोर्ट जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के पैरामीटर्स को ब्रॉडन करने की बात कही जा रही थी। इट इज नॉट जस्ट गेटिंग अकाउंट ओपन, हम्म. it is more towards people to start interacting, start doing transactions, हम्म. and also in terms of financial inclusion के अंदर कुछ investment products कितना invest कर रहे हैं वो भी बात कही थी। हम्म. So I'll not I'm not fully confident about it, but so hence I'll skip या नो taking प्रॉब्लम, इसको that thing, देखते but हैं. क्योंकि जो एसडीजीज हैं, अपने 18 एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, sustainable development goals। या इसमें इसका एक पैरामीटर मेरे ख्याल से ये है जहाँ पे फाइनेंशियल पैरामीटर्स के सब एलिमेंट्स में होगा ये. विल सी दैट, विल एक्सप्लोर दैट. It's a very interesting piece. I think we should keep an eye because that's going to help mass number of people, and government also can get benefit out of it. I am falling in. आपको आपको क्यों लगता है क्यों नहीं चलेगा, ये बताओ मुझे आप। कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता ना. Nobody wants to see. रिटेल में बैंक और इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल दो थे. आपने इंडिविजुअल्स को प्रमोट करना चालू किया, सब बैंक का कहना था कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूं, हाँ दूसरा करेक्ट। इन्फॉर्मेशन करेगा, राइट? अब अगर सब कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पूल कैसे बने? हाउ, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक ही बैंक अपडेट करे और आप उसकी इन्फॉर्मेशन यूज कर लें? आप अपने कस्टमर को भी तो इसमें डालना पड़ेगा ना. मतलब इस पे बहुत चल रहा, मतलब आप देख लो 10 साल से. पहले तो एंटिटी चेंज हुई, सरसाई को गया, फिर वहां से कितने बार ये मूव हुआ, फॉर्म्स उसके कितने बार रिवाइज हुए, क्योंकि एक फॉर्म चेंज होता है पूरे बैंक को उसका फॉर्म का इम्प्लीकेशन आता है. फिर आपने कुछ पैरामीटर्स हटा दिए. क्या लग रहा है सेंस? मतलब सी के वाई सी आर स्पेशली फॉर इंडिविजुअल फोकस करते हैं, नॉन इंडिविजुअल को तो चलो इट्स अ बी टू बी गेम, उसको समझना पड़ेगा बाद में. पर इंडिविजुअल के लिए तो इट कैन बी अ ब्रेक थ्रू, बिकॉज केवाईसी बहुत आसान हो जाएगी फिर तो. नहीं, मुझे लगता है काफी अच्छा इनिशिएटिव है CKYC। और हम्म. अगर आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम आरबीआई पुशिंग टुवर्ड्स वीडियो केवाईसी,
हम्म कई लोग CKYC के बेसिस पे जो डेटा आ रहा था उसके बेसिस पे हम्म लेंडिंग भी कर रहे हैं, मेड वेरी कन्वीनियंट। करेक्ट। ऑल्दो अगेन जो आप बोल रहे हो कंसर्न्स अबाउट डेटा क्वालिटी, द हम्म क्वालिटी ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स यू आर गेटिंग वाज अ बिग कंसर्न। हम्म तो शायद अब दैट इज अ कंसर्न विच आई थिंक कैन बी सॉल्व्ड via more standardization, get ensuring there are random audits which to be done with entities जो अपलोड कर रहे हैं, हम्म और जो सोर्स है अपडेट हो रहा है वहां पे भी एक तरफ मतलब कुछ हम गार्ड रेल्स लगा सकते हैं कि देयर हैज टू बी सम प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट which are getting uploaded because eventually it solves for everyone। यस, तो it solves the वहां पे ecosystem actually. It solves the ecosystem and makes the life of customers easy, no? क्यों मुझे बार बार, क्योंकि अगर आप देखो फॉर एग्जांपल अकाउंट एग्रीगेटर में भी वी हैव सीक्वेंसी पैरामीटर इन द ए फ्रेमवर्क आल्सो। वो उसके अंदर यस नो आता है। जस्ट नो आता है, तो अगर हाँ, अगर सपोज सी इफ यू हैव ऑलरेडी हैव ठीक सी है भाई। every banks every FI has the data, right? हम्म Only that indicator number is enough to unlock the data, or even the A becomes easy, right? See, I think abhi only mostly banks can participate in CKYC, yeah? And NBFC also, right? NBFC हाँ। हाँ. But if you जैसे सिविल में आपने सुपर यूजर बना के फिनटेक को अलाउ किया, राइट? अगर वैसा कुछ किया जाए तो फिनटेक कैन एक्सेस द केवाईसी इजली ना। हाँ अग्रीड, ये हो सकता है, यू आर राइट। हम्म देखो अभी कई सारी इनिशिएटिव्स और भी चल रहे हैं, जैसे API सेतु का भी आई हम्म थिंक देयर वाज अ मीटिंग रिसेंटली, हम्म शायद वहां पे भी ये डिस्कशन है ये डेटा को कैसे ला सकते हैं अलग अलग डेटा सोर्स को, एंड वी मतलब लॉजिकली जस्ट नॉट एनेबलिंग इट फॉर all regulated entities, can हम्म it can be unlocked for other entities also for their use। तो हम्म वो डिस्कशंस हैं, आई थिंक रेगुलेटर इज स्केप्टिकल अबाउट इट कि मतलब obviously when you open it up to the market there are other pain points which can इम्पोर्टेंट। occur and there are frauds which can happen। तो वो शो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिटवीन फ्रॉड एंड इनोवेशन, आई थिंक वहां पे फंस जाता है मामला। वहां पे बट धीरे धीरे चीजें बेटर ही हो रही हैं मोर। हम्म इवन अगर आप AA का कवरेज भी देखोगे वो भी काफी बढ़ चुका है, यस। और द एफर्ट्स टुवर्ड्स गेटिंग एंटिटी अकाउंट्स एक्सेट्रा इज आल्सो समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। ये क्लियर मुझे ये भी दिखता है कि इनोवेशन को आज के टाइम में बहुत सारे इनसिक्योर वेज हैं टू गेट डेटा हम्म विच फिनटेक्स, बिकॉज उनको सीधे रास्ते से नहीं मिलता तो वो लोग दे टेक अदर राउट्स, राइट। तो धीरे धीरे उन मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा, बट इवेंचुअली सॉल्यूशंस बनेंगे जो वहां तक भी एक्सेस बना पाएंगे। आई थिंक फेस भी कुछ कुछ एफर्ट डाल रहा है टू अनलॉक दीज डेटा पॉइंट्स फॉर देयर ओन मेंबर्स फॉर फिनटेक्स एक्सेट्रा। yes yes yes. So I think we are almost coming to the closure, but I want to touch upon three important topics which I think are relevant before we close uh, with final comments. Uh, One is retail fraud, retail digital frauds. You know that it is, the numbers are being alarming. The kind of frauds which are happening in the retail space, including with the vulnerable groups like senior citizens, and also the digital arrest which was happening, and a lot of UPI related frauds. I know NPCI is doing amazing work along with the startups to bring strong fraud controls. Even in the sandbox, also there was a program on the fraud, anti-fraud regime and program. ऐसा कोई स्टार्टअप या ऐसा कोई अभी ऐसा इनपुट जो कि जरूरी है स्पेशली टू bring down the numbers of digital frauds? Many of these, as you said, there are startups who are working, and even regulators, I4C is working in terms of scrubbing these Hmm. fraud which are happening। ऑल्दो जो फ्रॉडस्टर हैं वो भी काफी तेज है, वो नए नए तरीके लेके आते हैं। Hmm. मुझे लगता है कि एजुकेशन इज वन थिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प इन सॉल्व दिस। लाइक किसी तरह मैकेनिज्म बनने चाहिए। आई थिंक द अदर वन बिग थिंग विच आई क्लियरली सी इज, तो Hmm. वन ऑफ द फ्रॉड हैपेंड विद माय फादर एंड आई सॉ कैसे वो डिजिटल से वापस कैश इकोनॉमी पे आ गए एक फ्रॉड की वजह से। Hmm. Hmm. बट हाउ यू देर कैन बी मतलब व्हाट आई सी इज, जैसी रिपोर्टिंग होती है फ्रॉड्स की, एक तो आप वो कन्वीनियंट कैसे कैसे करते हो। मुझे जो जब मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा था तो मुझे लगा थोड़ा अभी भी अच्छा। फ्रिक्शन है प्रोसेसेस में। तो वो चीज कैसे सॉल्व हो सकती है। ऑल्सो द काइंड ऑफ फ्रॉड विच वॉज हैपेंड, तो मतलब जब आपने फाइल करी कंप्लेंट, Hmm. देन यू टेक टाइम टू इवैल्यूएट द केस कि ये फ्रॉड है कि नहीं एक्चुअल, Hmm. Hmm. राइट। Hmm. अगर आपको पता चलता है कि कुछ इंस्टेंसेस से ये नया टाइप का फ्रॉड है, Hmm. then there has to be a mechanism you can actually broadcast this
टू द लास्ट माइल, जो अभी इसमें फंस कौन रहा है, इसमें या फिर तो एल्डरली फंस रहे हैं यस, या फिर अनएजुकेटेड फंस रहे हैं। करेक्ट, दीज आर द मोस्ट प्रोन कैटेगरी ऑफ पीपल जो फंसता है। तो यस, हाउ यू कैन इंश्योर कि वहां तक इस फ्रॉड के बारे में पहुंचा सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। हम्म, I think that is the only way, apart from other mechanism of हम्म, many startups in terms of transaction monitoring, हम्म, in terms of जैसे ऑल्दो इनोवेशन की बात करते हैं हम, तो पेमेंट्स रियल टाइम है। हम्म, देर इज अ रीजन दूसरे देशों में वो रियल टाइम नहीं है। हमेशा नहीं रखा, क्यों? हाँ, क्योंकि देन यू हैव अ वे टाइम फ्रेम जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो और उसको हम्म, बचा सकते हो पैसे को। तो ठीक है, बट आई थिंक वी आर एट द लीडरशिप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव डन विद फाइनेंस स्पेशली इन इंडिया। तो ये भी सॉल्व होगा। वन क्लियर वे इज दैट हाउ यू कैन एट द राइट टाइम आइडेंटिफाई द न्यू काइंड ऑफ फ्रॉड एंड एक्चुअली इंश्योर कि वो लास्ट माइल तक पहुंच जाए और लोगों तक पहुंचे जहाँ पे वो हिट कर सकता है। वन गुड वे आई हैव सीन इज जो आपके कॉलर ट्यून्स पे दे स्टार्ट yeah. टेलिंग अबाउट द In fact, फ्रॉड, आई RBI थिंक। has come up with very educative content, especially on which links to be clicked for doing transaction. ये सब अभी ads आ रहे हैं, so I think this is, as you said, right, initially, we need to create more awareness, more inclusion and understanding. Literacy, AI literacy is important. The way BFSI literacy is important. In fact, the viewers who are watching us, RBI का एक बहुत अच्छा सर्कुलर है, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो कि बहुत पहले आया था, 2018-19 में आया था। आई वर्कड इन दैट सर्कुलर व्हेन आई वाज वर्किंग इन बैंक। इस सर्कुलर में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है जो आपने ऑथराइज नहीं किया है, और बैंक आपको हर ट्रांजैक्शन पे मैसेज भेज के बताता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक आपको ये ऑप्शन भी देता है उस मैसेज में कि आप उसको उसको आप टिकअप कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये मैंने नहीं किया, अनऑथराइज्ड। अगर आप उसको एक विद इन टाइमलाइन करते हैं, आई थिंक 48 आवर्स या 24 आवर्स में है, तो उस केस में आप बिल्कुल भी फ्री हो फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस। Everything is the responsibility, the burden of proof also about transaction is also with the RE or the bank. So I think ये एक important aspect है कि whenever you get any kind of message transaction, till the time uh, that gets solved, you will immediately get credit. In fact, RBI says in the circular that you have to reverse the transaction and give credit to the customer. It's a very लेकिन जनरली ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं अभिषेक, इट इज मोर पीपल ड्रिवन, लाइक पीपल एक्सेप्ट, डू नॉलेज, accept. तो Yes, एक्नॉलेज। yes, तो वो वहां पे वो अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि then it is your mistake and it happens because you are yeah. not able to understand that this is a fraud which is happening. So जहाँ पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उस केस में बर्डन प्रूफ ऑन यू दैट एक्चुअली यू कॉम्प्रोमाइज, तो ऑफ कोर्स वहां पे नहीं होगा। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे somebody actually tried to get access to your credentials and account and you have not done हाँ, anything to करेक्ट। rectify, तो उस केस में आई थिंक यू शुड लेवरेज लेना चाहिए। ये बेनिफिट है, RBI इज वेरी इनिशिएटिव देयर। इन टर्म्स ऑफ टू मोर थिंग्स विच आई वांट टू आस्क इज AI in finance. So, do you see any immediate startups who are now bending towards AI, try to inculcate AI into the journey? ऐसा कुछ are you seeing some progress happening in India, especially in the fintech world? ये मुझे लगता है अभिषेक, एआई तो प्रीडोमिनेटली अब मेजोरिटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आ चुका है। Hmm. सब लोग मेजरली बिट्स एंड पीसेस में या फुल्ली कुछ जगहों Hmm. पे, तो देयर एआई इज पेनिट्रेटिंग। स्पेशली अगर आप देखोगे a lot of work. I will not name any startup because it becomes, Yeah, yeah, because there are majority of the yeah, yeah, startups into fintech space who are building products. So yeah. I want to prefer anybody, but जो मैंने देखा है, दो क्लियर डिमार्केशंस हैं जहाँ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑनबोर्डिंग अ कस्टमर। तो टू द लेवल यूज ऑफ एआई इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग कि इसको किस जैसे केवाईसी है, उसके पास 3 लेयर्स हैं या 3 वेंडर्स हैं, किस Hmm. वेंडर के पास लेके जाना है, किस टाइम पे एक्टिव है, Hmm. इस Hmm. कस्टमर ये कस्टमर पटना से आता है, Hmm. इसको कौन सी लैंग्वेज दिखाना है, Hmm. या इसके क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके पास डिजी लॉकर होगा, ये Hmm. वहां से कर सकता है कि नहीं, Hmm. या Hmm. फिर टू द लेवल के हो सकता है कि नहीं, हमें इसको फिजिकली केवाईसी कराने हैं, Hmm. या Hmm. अगर कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रही है तो किस अकाउंट आपको पेमेंट एग्रीगेटर पे लेके जाना है। तो Hmm. मेजरली फॉर बिजनेस एआई हैज सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम वेयर इन इट इज एक्टिंग टू इनेबल दैट द कन्वर्जन ऑफ फनल इंक्रीजेस। तो अगर आप पहले 100 में से 10 कस्टमर कर रहे थे, big and there can be many of the drop off because of technical reason, it has actually shortened that thing. And it is why I'm stating it, because it has a direct impact on the profitability.
क्योंकि आप कस्टमर एक्विजिशन में इतना पैसा डालते हो और वो कस्टमर एक्वायर करके बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज आप नहीं कर पाते, देन इट इज अ कॉस्ट, it is a like it is acting against your overall customer acquisition engine. तो एक तो ये प्रॉब्लम एक दिखता है मुझे। दूसरा, फ्रॉड इज वन ऑफ द एरिया जहाँ पे काफी काम हुआ है यहीं पे। तो यू मतलब अपार्ट फ्रॉम just profile information, you go more into transaction level details of the customer to understand कि ये कस्टमर किसी म्यूल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स के साथ है क्या, या फिर इसके जो ट्रांजेक्शन्स आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट मैरिंग विद द प्रोफाइल विद कस्टमर हैज, एंड मेनी अदर पॉइंट्स। तो आप कस्टमर को राइट एंट्री पॉइंट पे आप रोक देते हो। ठीक है। अब तो डीफेक आपका इमेजेस करने लगे, तो देयर इज इंटेलिजेंस विच इज गेटिंग बिल्ड इन द ऑन बोर्डिंग स्टेज, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इवन लाइवलीनेस चेक्स भी लोग बाईपास कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं जहाँ पे आप इन फेक कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट इवेंचुअली सेव्स अ लॉट ऑफ लॉस विच एनी लेंडर कैन हैव। तो एक ये क्लियरली दो एरिया जहाँ पे आपका कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन, फनल ऑप्टिमाइजेशन एज अ बिजनेस रिसोर्स, एंड ऑल्सो कन्वीनियंट टू द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ पर्सनलाइज जर्नी, जो आप उसको एक्सपीरियंस देते हो, सीमलेस एक्सपीरियंस से वो। दूसरा, फ्रॉड के लेवल पे प्रिवेंटिंग अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ द लेंडर इन टर्म्स ऑफ सेविंग अ कॉस्ट, वो एक मुझे लगता है काफी एक इंटरेस्टिंग स्पेस है जहाँ पे काफी काम हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम मुझे लगता है एजेंट्स, जैसे कॉल सेंटर्स जहाँ पे भी कस्टमर सर्विस है, दैट हम्म इज अंदर स्पेस। आप काफी पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस दे सकते हो इन हम्म रीजनल लैंग्वेजेस। हम्म भी कंपनीज अब टेलिंग के वो 20-20 लैंग्वेजेस में भी अब उनके एजेंट्स केपेबल हैं। इट इज अ इवॉल्विंग स्पेस विच विल गो बेटर विद टाइम, बट आई थिंक कलेक्शंस और आपका कस्टमर सर्विस ऐसा स्पेस है जहाँ पे विच फॉर मेनी ह्यूमनली डिपेंडेंट। आई रन कॉल सेंटर माई सेल्फ। हम्म तो मुझे लगता है कि इतना डिफिकल्ट होता था टू मैनेज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ वेरियस कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ज्योग्राफीज ऑफ द कंट्री। तो करेक्ट अगर कोई कन्नड़ है, उसको कन्नड़ वाले बंदे को मैच करना and उसकी अवेलेबिलिटी, गेटिंग दैट गाय एट नॉर्थ इज सो डिफिकल्ट। नाउ दिस कैन बी, ऑल दीज इंटरेक्शंस कैन बी enabled by AI, एंड देन यू हैव मतलब मुझे याद है कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू ट्रेन पीपल, स्पेशली व्हेन यू डू मॉर्गेज बिजनेस। और मॉर्गेज बिजनेस बहुत डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पे, डिफरेंट जगहों की। नाउ यू कैन बिल्ड दैट इंटेलिजेंस इन दीज बॉट्स, ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट है शुरुआत में, बट वंस इट इज matured इट विल गिव यू दैट एक्यूरेसी विच यू वुड हैव नेवर इमेजिन। यू विल फोकस मोर ऑन कि भाई आपको बिजनेस लाना है, ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी इज ऑल गॉन। Yeah. No, in fact, I was also reading AI agent and the moment ये मैं देखता हूँ कि आरबीआई ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पेनल्टीज लगाई हैं केवाईसी नॉन कंप्लायंसेस। आरबीआई ने पिछले 10 सालों में 5 सालों में सबसे ज्यादा पेनल्टीज लगाई है फेयर प्रैक्टिसेस कोड के नॉन कंप्लायंस के ऊपर। और उसके बाद फिर कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े इन द सेंस दैट पीपल आर ग्रीव, दे आर नॉट गेटिंग द राइट सोल्यूशन। So I think these startups definitely are going to add the life of a customer better. They'll make it better so that customer grievances, customer redressal mechanism, customer service in banks, fintech, and NBFC improves because of the simplification of the process. Abhishek, last question, and which is a very crucial question, which I want you to answer, especially let's say somebody who is watching us. अगर कोई हमको छत्तीसगढ़ में रायपुर से देख रहा है, या हमको कोई बिहार में पटना से देख रहा है, या फिर झारखंड में रांची से देख रहा है, या फिर भटिंडा से, पंजाब से भटिंडा भटिंडा में पंजाब से भटिंडा से देख रहा है, या फिर लेट्स से somebody is watching us from Tumkur in Karnataka, or let's say somebody is watching us from far regions of from Bharat in all sides, and let's say Guwahati, Assam से हमको कोई देख रहा है, and they are youth, they are looking for the right skill. They are a university student, or they are a college student. They are doing research, or let's say they are doing their graduation or management degree, and you are working in IFF, and how the entire BFSI is evolving in India. How and what they uh, should focus and work on building skills so that
Point number A, they are employable. Point number two, they can give value by creating startup of their own entrepreneur journey so that they add value to the economy. तो अभिषेक मुझे लगता है कि वाया सी आई कम फ्रॉम अ कैटेगरी बी काइंड ऑफ एमबीए स्कूल राइट लकीली आई एंडेड अप इन अ जॉब जो मुझे मेरी इंटरेस्ट की थी एंड हाउसिंग फाइनेंस वाज लाइक आई नेवर इमेजिन के आई वुड लाइक दैट प्रोफेशन सो मच कि आई यूज्ड टू स्पेंड माय होल डे in terms of ensuring that the business is running up and it's giving profits. So, but I see that there is a lot of gap in, especially in colleges, जहाँ पे उनको problem statements या visibility नहीं होती कि actually skill sets क्या चाहिए या किसी रोल के लिए आपको एक रोल है अगर प्रोडक्ट मैनेजर का उस प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में क्या क्या आता है और एज अ एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम स्पेशली विद मैनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के कॉलेजेस में लोग पास आउट कर लेते हैं उसको आखिर तक नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है यू हैव टू इनिशियली इंश्योर कि आप अगर आपका इंटरेस्ट बीएफएसआई में है व्हाट वी वर स्टार्टेड डूइंग आईएफएफ के साथ कि जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है बीएफएसआई की वी हैव स्टार्टेड funneling these problem statements to some of the institutes where we have some representation in the community कि आप इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करो एंड जहाँ पे जो लोग आईएफएफ से नहीं है या नॉर्मल भी आई थिंक दे शुड लुक आउट फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज देयर इन द इंडस्ट्री बाय वर्किंग विद पीपल इन टॉकिंग टू बीएफएसआई प्रोफेशनल्स गोइंग टू सच इवेंट्स इन लाइक जीएफएफ या भारत फिनटेक है या एनी अदर इवेंट जहाँ पे उनको सेंस मिलेगा कि अभी क्या चल रहा है ब्रॉडली देयर वर मेनी रोल्स इनिशियली जो सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कहीं ना कहीं अब चेंज होके वहां पे पार्टनरशिप्स की टीम्स बढ़ गई हैं पहले बैंक्स में पार्टनरशिप टीम्स नहीं होते थे प्रोडक्ट रोल्स इवॉल्व हो गए हैं I think value driven proposition बढ़ गया. वैल्यू हाँ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स आ गए हैं तो आपको ना स्किल सेट्स उसके हिसाब से डेवलप करने पड़ेंगे एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक अ करियर इन बीएफएसआई तो अगर आप किसी रियल प्रॉब्लम पे इनिशियली काम कर लोगे आई थिंक दैट विल गिव यू अ वेरी बिग फुल 360 डिग्री व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड और बीएफएसआई भी इट्स स्प्रेड अक्रॉस सो इट्स वेरी बिग तो विद पीपल हु आर स्टडिंग आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के वो 2 साल के करियर में या 4 साल के उनके कोर्सेज के अंदर they can actually hop onto different problem statement and then find out what is something which they like to do. Yes. They have Yes. to start and they have to work on a real problem. I think hackathons by government, RBI, by and there are many other problem statement which there are many philanthropy or there are international bodies जो ये problems देते रहते हैं. I think you should get ensure कि आपका college रियल प्रॉब्लम्स या रियल लोगों से मिलवा रहा हो आपको नहीं है तो फिर आपको मार्केट के अंदर ये देखना पड़ेगा कि ये रियल प्रॉब्लम कहाँ से मिलेंगे Yeah. वंस यू स्टार्ट वर्किंग यू हैव टू फाइंड बिल्ड नेटवर्क अराउंड इट और उसके बाद अगर आप इस पे काम करते हो और आपको लगता है कि यू आर एबल टू सॉल्व इट इन बिट्स एंड पीसेस आई थिंक यू आर मार्केट रेडी Yeah. In fact, I was talking to one of the CEOs of Z Dimensions in Dubai. He hails from Jordan, but he has built his empire and business in Dubai, and he has worked as academician in the university. And now he is a founder and entrepreneur for Academy for RegTech. उनका कहना था कि the expectation of academia and the expectation of industry, there's a gap. The industry runs ahead 10 years of what academia wants. Therefore, if you see recently, a lot of with AI coming into picture, you will say when RBI came with a circular on ethical AI, free AI, you see 2 IIT Bombay faculty members are part of that committee. So I think the more the collaboration happen between industry, as you rightly said, between industry and the academia to make and bring and solve real life problems, real solutions. वो थ्योरी पढ़ लिया नॉलेज है बट वो एक्चुअल में एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो वो एक पूरा साइकिल वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट का. और अभिषेक इसमें एक और गैप मैं एक दो कॉलेजेस में आई स्टार्टेड विजिटिंग कॉलेजेस एंड व्हाट गैप आई हैव सीन इज कि काफी रिसर्च ऑलरेडी जो पीएचडी कर रहे हैं या अपने पोस्ट ग्रेड्स कर रहे हैं वो इतनी रिसर्च कर रहे हैं और अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो उनका सारा एफर्ट बेकार
वो डिग्री ठीक है। लेने के लिए रिसर्च करना फायदा नहीं है मेरे हिसाब से आज। और दूसरा, अगर उन्होंने किसी अच्छे पॉइंट पे रिसर्च भी किया है, हाँ, हाउ आर यू फन, दिस इज नॉट कमिंग टू इंडस्ट्री। करेक्ट। आज के टाइम में अगर कोई कंपनी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहती है, वो बिग फोर को हायर कर रही है, उससे सॉल्व करवा रही है, हाँ, हाँ। लेकिन वो कोई भी एग्जिस्टिंग रिसर्च का फायदा कोई नहीं ले रहा है। तो हम्म। ये फनल अप कैसे हो, सो दैट आप यू आर नॉट रीबिल्डिंग द व्हील अगेन एंड अगेन अगेन। करेक्ट। आप जो चीज हो चुकी है, या फिर तो आप उसको डायरेक्शन दो एंड हम्म। गेट हिम इन, मतलब गिव हिम, आर्म हिम विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपको ये करना है, दिस इज व्हाट हम्म। वी वांट टू डू, हम्म। एंड देन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट के जो उसने किया है वो दोबारा से आप जाके रिसर्च नहीं कर रहे हो, राइट? हम्म। तो ये another problem which I think is something very close to me, and we should somehow with coming times IFF को हम्म। I think we will be able to solve it, or we will try to solve it working with institutes. Yeah, yeah, yeah. Definitely, because I visited few events in the colleges. They've invited on the finance conversations, conclaves, or leadership summits on fintech, BFSI. And what I see is that there is a lot of potential in our youth. There's a lot of potential in our ecosystem. They come from nice background, families. They want to build products. Sometimes lack of direction is the reason where, and lack of the problem. Any PhD research requires actual problem to be solved, which is a problem gap or a research gap. Same with any fintech and any youth who is watching this. If you want to, of course, build something, build a product, or even you want to join a big company, the important thing is that what value you can bring in. And that is only possible by using your knowledge in the academia, but also understanding what practicality the industry wants and how you can quickly match that expectation. With this, thank you, Abhishek, for joining in. It was a great conversation. I hope you also enjoyed the conversation. Yes, Abhishek, I think your questions actually re-triggered some of the thoughts which I always had. Happy to share and help any of your viewers if any capacity possible. Yeah, yeah. Good. Thanks a lot. Of course, we are there with you in the IFF journey and see how best we can contribute. But all the best for great initiative. Looking forward, and let's see how best we can make Bharat developed nation by 2047 with small steps being taken every day. Thank you, Abhishek. Thank you for calling me. Yeah, Thank yeah. you. Thanks a Bye lot. bye. Take care. Bye.